بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خبر آپ کو دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن میں چیئرمین تحریک انصاف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد پولیس کو کل چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے عاطف بٹ۔ جی عاطف بتائیے گا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی عدم جو حاضری ہے اس پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آئی جی اسلام آباد کو ایک مراسلہ لکھا گیا ہے اور ناقابل وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اور کل 10 بجے جو ہے ان کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے آئی جی اسلام آباد کو، اور اس میں ان وارنٹس میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو بار بار بلانے کے باوجود جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور جو عدم پیشی پر جو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اور اب اسلام آباد پولیس کو یہ ہدایت کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ کل وہ چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ گزشتہ سماعت جو ہے اس پر بھی چیئرمین تحریک انصاف پیش نہیں ہوئے تھے۔ ممبر سنگھ نصاب دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کر رہا ہے اور اس دوران متعدد بار چیئرمین تحریک انصاف کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی، لیکن وہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے، اس لیے یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ عاطف بٹ۔ ایک مرتبہ پھر لیے چلیں وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ باقی سارے کام اب بالکل بہت اچھے ہو رہے ہیں، ڈویبل ہیں۔ میں نے اگلے دن میٹنگ میں بھی بیٹھ کے کہا تھا، وہ آپ کے جنرل سعید صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور تھے، میں نے ان کو کہا تھا جی دس از ڈویبل۔ بہت اچھا پلان دیا جنرل شاہد نے، ایکسیلنٹ پلان۔ مجھے صرف ایک چیز سے ڈر لگتا ہے کہ پانی جو ہے نا سر، اب پانی کس طرح پورا کرنا ہے؟ ہم نہریں نکالیں گے، دس از ون آف دی آپشنز۔ اب اس نہر میں ہم نے جو پانی ڈالنا ہے کسی نہر کا کم کر کے ڈالیں گے نا، کسی کا چارج کم کریں گے، پھر ہمارے ہاں وہ خدائی خدمتگار ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عجیب و غریب نعرے لگا دیتے ہیں، عجیب و غریب بات۔ they don't go for national interests, they don't feel۔ اب دیکھیں آج جو ایک بچہ اس ملک میں پیدا ہوتا ہے کتنا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کون سا ادارہ ہے جس پہ اس ملک کے عام آدمی کا اعتماد باقی رہ گیا؟ ہر آدمی ڈرا ہوا سہما ہوا، کل کے دن اگر صبح کا چولہا جلتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شام کا چولہا اس کا جلنا ہے کہ نہیں جلنا۔ صرف یہ ہے کہ ایگریکلچر ایک ایسا شعبہ ہے، ایگریکلچر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو خدا کے لیے سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ہم تو وی آر آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ، ہم نے تو 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو جیسے میعاد پوری ہونی ہے ہم نے چلے جانا ہے، لیکن جو بھی ہماری جگہ آئے گا ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے اور ہماری آپ سے ایز این انسٹیٹیوشن ریکویسٹ ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک ایگریکلچر سیکٹر کو اس کو آپ اس انداز سے لے کر چلیں کہ ویسے تو بڑے اب وہی بات آ جاتی ہے نا، شرم کی بات ہے جنرل صاحب۔ مجھے تو آئی سویئر میں آئی ایم ٹیلنگ یو ویری آنیسٹلی کہ مجھے شرم آ رہی ہے کھڑے ہوئے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے زراعت میں ہماری مدد کریں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم نہیں ڈیلیور کر سکے 75 سال میں؟ ہم نے ہر گورنمنٹ نے کسان پیکج دیا ہے، یہ بیٹھا ہوا خالد کھوکھری ادھر سے پوچھیں، ہر گورنمنٹ نے کسان پیکج دیا ہے۔ کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بدنامی ہو، کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ اس کا اچھا نام باہر نہ ہو۔ انفارچونیٹلی ہماری مینجمنٹ کے سسٹمز ہیں، ہم نہیں ڈیلیور کرتے، ہم نہیں کام کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رات کو جب ہم نے 100 کو اٹھنا ہے تو اوور نائٹ ہم ارب پتی بنے ہوں، ٹیکس ہم نہیں دیتے، چوری ہم ہر قسم کی کرتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے، کسان کاشتکار بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے، دیکھو یہ آپ لوگوں نے بچانا ہے، یہ بھول جاؤ، یہ توقع مت کرنا، یہ آپ لوگوں نے جب میں چولستان کا رہائشی ہوں، میں چولستان کا رہنے والا ہوں۔ ہم جب جاتے ہیں نا زیرو لائن کے اوپر، ہم جب جاتے ہیں، ہم جب انڈین پارٹ آف چولستان دیکھتے ہیں، یقین کیجئے ایک چپا ان کا ایسا نہیں جو گرین نہ ہو، ایک چپا ایسا نہیں۔ دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یار یہ دیکھو ایک باڑ لگی ہوئی ہے، باڑ کے اس طرف گرینری ہے، باڑ کے اس طرف جو ہے وہ صحرا ہے۔ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا یہ بات ہوئی تھی، آپ نے بات کی تھی چیف منسٹر صاحب،
یہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ والی، پہلے بھی آپ نے 2-4 دفعہ اس کا ذکر کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ریسرچ بغیر پیسوں کے ہوتی نہیں ہے. ریسرچ کے لیے گورنمنٹس کو فنڈز ڈونیٹ کرنے پڑتے ہیں. فنڈز کے لیے، ریسرچ کے لیے، ایک اچھی ریسرچ کے لیے میں اکثر یہ ڈاکٹر اقرار سے میں لڑتا ہوں، میری ان کے ساتھ بحث ہوتی ہے. وین آئی واز پروونشل ایگریکلچر منسٹر، میں نے ایک رنگ دیکھا تھا یوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد. اس کے بعد میں نے اس کا ڈاؤن فال دیکھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آج کل پھر کام ہو رہا ہے اس پہ، اور ایک اچھا کام شروع ہو گیا اس پہ. لیکن آئی ول سٹ ڈاؤن ود یو، اگر وہ بہت ضروری ہے تو آئی ہیو نو آبجیکشن. ناظرین، کراچی میں مانسون کے دوسرے اسپیل میں موسلا دھار بارش، بحریہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے، ناگن چورنگی اور ملیر میں بھی بادل جم کر برسے ہیں. سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا، انڈر پاس بھی تالابوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. بارش کے باعث کئی مقامات پر نالے بھی ابل پڑے. شاہراہ فیصل پر بلوچ کالونی فلائی اوور اور ناگن چورنگی پر نالے کا پانی سڑکوں پر آ گیا. کراچی میں مونسون کا دوسرا اسپیل، وقفے سے شہر کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک اور گرد آلود تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ابھی آپ دیکھ سکتی ہو بارش ہو رہا ہے اور یہ پانی جمع ہوا ہے. یار راستے میں پورا ٹریفک جام ہے. بڑی گاڑیوں کا تو چلو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن بائک والوں کو بہت تکلیف ہے. تو دوسری جانب معمولی بارش نے بھی شہر کے کئی علاقوں میں سیوریج کے مسائل کھڑے کر دیے. ناظم آباد نمبر 1 رزمیہ میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کل 10 سے 15 منٹ کی بارش ہوئی ہے اور اس پہ یہ حال ہے. اگر یہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بارش ہو جاتی تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا. سامنے مسجد ہے، گلیوں کا یہ حال ہے، اتنا پانی کھڑا ہے، ہر جگہ پہ یہی حال ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موجودہ سسٹم 26 جولائی تک وقفے سے بارش برسائے گا. ادھر بارش برستے ہی کے الیکٹرک کے فیڈر ٹرپ ہونا شروع ہو گئے. مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر رانا خالد محمود کے ساتھ سونیا خانزادہ، GNN کراچی. ادھر نارتھ کراچی کے سیکٹر 11E-D 5 اسٹار اور ناگن چورنگی کے سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا. پانی میں شہریوں کی گاڑیاں بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی. اسی بارے میں بات کرتے ہیں، راشد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد، بتائیے انتظامیہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ جی دیکھیں، انتظامیہ کی جانب سے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ بارش کے پانی میں بہہ جاتے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں ناگن چورنگی پر. گزشتہ 12 سالوں سے میں اسی جگہ سے رپورٹ کرتا ہوں اور انتظامیہ کو سب پتہ ہے کہ اس مقام پر پانی جمع ہوتا ہے، اور چونکہ اس مقام سے پانی کی نکاس کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وسیم اختر میئر ہوں یا اس سے قبل مصطفیٰ کمال ہوں یا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوں یا اب مرتضی وہاب میئر کراچی ہوں، تو سب کو پتہ ہے کہ ناگن چورنگی پر پانی جمع ہوتا ہے، لیکن یہاں سے نکاس کا کسی حوالے سے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اداروں کے آپس میں کوارڈینیشن نہیں، کیونکہ نارتھ کراچی ہو یا ضلع سینٹرل کے جو علاقے ہیں وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہیں. یہاں کے نقشے کہ کہاں پر سیوریج کا نالا ہے اور کہاں پر برساتی نالا ہے، یہ تمام ریکارڈ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہے. KMC اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو انتظامیہ ہے اس حوالے سے اس کے پاس کوئی علم نہیں کہ کون سا نالا کہاں پر ہے. تو یہ آپس کے کوارڈینیشن کی وجہ سے اس ڈسٹرکٹ کی رہنے والی لاکھوں کی آبادی جو ہے وہ ہمیشہ بارشوں میں مشکلات کا شکار ہوتی ہے، اور بارشوں میں ان کو کئی فٹ جو ہے وہ پانی جمع ہوتا ہے. منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے. یوسف گوٹ کا علاقہ اور اس سے متصل جو بلوچستان کا سرحدی علاقہ ہے وہاں سے بھی پانی جو ہے وہ ضلع سینٹرل میں ناگن چورنگی کے مقام پر آتا ہے، اور یہ انتظامیہ کی غفلت ہے کہ وہ اس پانی کی نکاس کے حوالے سے کبھی انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. جو اس ناگن چورنگی پر جتنے بھی برساتی نالے ہیں یا سیوریج کے نالے ہیں وہ اس قدر گنجائش ان کی کم ہے کہ اگر ان کی مسلسل صفائی بھی کی جاتی رہے تو پانی جو کہ بلوچستان کے پہاڑی سلسلے سے اور سرجانی اور نادن بائی پاس سے یہاں آتا ہے اس کی مقدار اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ناگن چورنگی پر پانی ہمیشہ جمع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، ضلع سینٹرل کی انتظامیہ
एजेंसियाँ हो या KMC के जो अफसरान हैं वो आपस में मिलकर तमाम चीज़ों को अपना यकजोई से देखें, और जिसके पास इस इलाके का रिकॉर्ड है कि कौन सा नाला कहाँ पर है, अगर उस रिकॉर्ड को देखकर इस इलाके की प्लानिंग की जाए तो यकीनन हम अगले साल जब मानसून का सीज़न होगा तो यहाँ से रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस इलाके में पानी जमा नहीं होगा। लेकिन जब इदारों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यकीनन मैं दावे से कहता हूँ कि अगले साल फिर हम नागन चुरंगी पर मौजूद होंगे और शहरियों की मुश्किलात से इसी तरह जो है वो आगाही देते रहेंगे। जी ठीक है, हमेशा की तरह दावे किए गए लेकिन काम कुछ नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया राशिद, आप इस बारे में बता रहे थे। कराची में आज कहां कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई, महकमे मौसमियात ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं सोनिया खानजादा से। जी सोनिया, किस इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुई? जी शुक्रिया, आपको बताएंगे शहर में सबसे ज्यादा बारिश जानी में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुलशन मेहमार में 33 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 23 मिलीमीटर और सादी टाउन में 22.6 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई। औरंगी टाउन के इलाके में 16.4 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पे हमने देखा कि 15 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो महकमे मौसमियात ने रिकॉर्ड की। गुलशन हदीद में 13, नाजमाबाद में 12.3 मिलीमीटर, जबकि जिना टर्मिनल पे 7.6 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। पहलवान कोट और एयरपोर्ट के एरिया की बात करें तो वहां पर 5.8 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोरंगी की साइड पर जो है वो 4.4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। अगर हम सबसे कम बारिश की बात करें तो केमाड़ी साइड पर जो है वो 1.5 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। और महकमे मौसमियात का यही कहना है कि ये सिलसिला जो है ऑन ऑफ 26 तारीख तक जो है वो चलेगा, लेकिन इतनी चंद मिनटों की बारिश थी और उसके बाद शहर में काफी जगहों पे जो है वो मसाइल का सामना हमने देखा कि करना पड़ रहा है शहरियों को। काफी जगहों पे जो है वो ओवरफ्लो हो गए गटर, और काफी जगहों पे जो है वो नाले बाहर उबल के बाहर आ गए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि आज शहर में जो है वो रात तक जो है वो तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनिया। उधर कराची में बारिश से नॉर्थ नाज़िमाबाद में गलियां और सड़कें तालाब बन गई हैं। बारिश के पानी की निकासी ना होने से शहरियों को परेशानी का सामना। इसी बारे में अपडेट करेंगे एहसान खान। बिल्कुल, देखिए मानसून का दूसरा स्पेल है और शहर भर में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ बारिश हो रही है और कहीं हल्की बारिश हो रही है, और कराची में जब जब बारिश हो तो शहरियों के मसाइल में इजाफा ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। शहरी हुकूमत हर दफ़ा अपने दावे सिंध हुकूमत दावे करती थी, लेकिन उन दावों के बरक्स यहाँ पर जो शहर के अंदर जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं। मुख्तलिफ जो शहराएँ हैं वहाँ पर बदस्तूर पानी मौजूद है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मेन हैदरी मार्केट के ऊपर मौजूद, और ये मरकजी शाहरा इस वक्त अगर आप ये देखें तो शाहरा के ऊपर भी यहाँ पर जो है पानी मौजूद है, और यहाँ से जो लोग दफातर से छुट्टी करके घरों को रवाना हो रहे हैं, यकीन तौर पर उन्हें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं उनकी मोटरसाइकिलें जो है बंद हो रही है, मजबूरन उन्हें जो है वो वहाँ से गाड़ियाँ बुकिंग करा के जो घरों को मोटरसाइकिलें जो ले जानी पड़ रही है। एक्स्ट्रा अखराजात उनके आ रहे हैं, उसके बावजूद मुख्तलिफ शाहराएँ इस वक्त यहाँ जो शाहराएँ हैं उनके ऊपर पानी जो है वो मौजूद है। शहरी अमला हमें इस वक्त तक कहीं भी नजर नहीं आया जो कि यहाँ पर निकासी आप कर सके, या जो पानी है बारिश का उससे जो है वो निकाल सके। इस वक्त भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और शहरियों के मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान कहती हैं कि निगरान वजीर आजम के लिए कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। कल फेक न्यूज़ के जरिए किसी को निगरान वजीर आजम का ताज पहनाया गया। आइन में निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी का तरीक़ाकार तय है। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी को कोई नाम पेश किया गया, ना ही हमने किसी नाम पर इत्तेफाक किया है। फैसल करीम कुंडी बोले, कल बातें हो रही थीं कि निगरान हुकूमत फाइनल हो गई। इसहाक डार का नाम अभी तक पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। अगर इसहाक डार का नाम शेयर होगा तो हम भी अपना नाम लेकर आएंगे। कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है और ना कोई फैसले पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं, ना नाम के हवाले से ना किसी चेंज के हवाले से। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने वही पोजीशन रखी है जो पहले थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो हम गैर जानिबदार हो तो बेहतर है। तो यहाँ चल पड़ी लंबी लंबी फाइनल खबरें, ये सब फेक न्यूज है। कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। फिर कल खबरें चल रही थी कि दुबई में कोई मीटिंग्स हो रही हैं दोबारा, और वजीर आजम भी फाइनल हो चुके हैं, जिसकी हमने कल
इस पे हमने तहदीद की। इसहाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया, आज तक नहीं आया। इसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून के पास या बाकी जमातों के पास, उनके पास इख्तियार है कि वो अपने नाम लाएंगे, उसमें तमाम लीडरशिप बैठेंगी, 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ डिस्कस होंगे। तो आज तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसहाक डार साहब का नाम शेयर नहीं हुआ। अगर होगा तो डेफिनेटली डिबेट होगा, हम भी अपने नाम लेके आएंगे, बाकी जमातें भी नाम लेके आएंगी, डिस्कशन होगी, उसके बाद जो भी होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि इतने मोतबर चैनल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अगले माह निगरान हुकूमत वजूद में आ जाएगी। उम्मीद है निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। 2018 के इलेक्शन के नतीजे में मुल्क के साथ जो हुआ सब जानते हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का सफर ठप कर दिया गया, अब डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका। IMF की शर्त पर बिजली के बिल बढ़ाने पड़े। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के रेट में कोई इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने लाहौर और शेखुपुरा में 3 इकनॉमिक जोन्स का संग बुनियाद रख दिया। आज़रबाईजान के साथ पेट्रोलियम सनत में ताउन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हर माह LNG का एक जहाज़ खरीदेगा, ना खरीदने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। बिजली की कीमत में इजाफा मजबूरी, इजाफे का बोझ घरेलू सार्फिन पर नहीं पड़ने दूंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की कीमत में इजाफा 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए नहीं है। 31% घरेलू सार्फिन को जुज़वी सब्सिडी दी गई। बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन, जो कि IMF की एक शर्त थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सख्ती के साथ ये कहा कि इस बिजली की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये गरीब आदमी के ऊपर इसका बोझ मैं नहीं पड़ने दूंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बताया कि आइंदा माह निगरान हुकूमत आ जाएगी। इस हवाले से कानून साजी भी कर रहे हैं। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मैशत का पहिया तेजी से नहीं चलेगा। अगले माह इंटर्म गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी और जितना अर्सा जो आईनी है उस दौरान हमारी इकॉनमी को टर्न अराउंड करने के लिए जो भी इकदाम हैं वो मुझे पूरी उम्मीद वो करेगी। इसके लिए हम इनेबलिंग लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं ताकि इंटर्म गवर्नमेंट के ज़माने में वक्त का ज़िया ना हो और टीम एफर्ट्स के ज़रिए हम उसको फिल फॉर इन मामलात को हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मबैन पेट्रोलियम की सनत में मुआहदे पर दस्तखत किए। लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन का संग बुनियाद भी रखा। और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से BNP के सरबराह अख्तर मेंगल की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल, निगरान सेटअप और आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात का अहवाल जान लेते अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ बताइएगा। जी BNP के सरबराह अख्तर जान मेंगल की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। निगरान सेटअप, आइंदा इंतखाबात में जो खित्ते की सूरत हाल है इस पर तबादला ख्याल किया गया है। बलूचिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है इस पर भी बातचीत हुई है। खसूसी तौर पर जो आइंदा निगरान सेटअप आने वाला है इस हवाले से दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल किया है। जी सही, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 3 से 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है, नेपरा अपना काम कर चुका है। हमने सिफारिश कर दी है, सब्सिडी का तयन हुकूमत का काम है। बिजली के बाद अवाम पर गैस बॉम्ब गिरा दिया गया है। गैस की कीमतों में 50% इजाफे की मंजूरी। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस 50%, सदर्न के लिए 42% महंगी। नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस 415 रुपये फी MMBTU महंगी की गई। सदर्न के सार्फिन के लिए 417 रुपये इजाफा। ओगरा ने समरी अरसाल कर दी। हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बम गिरने को तैयार। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। नेपरा तफसीलात का जायजा लेकर अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी, जिसके बाद हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। मेंबर सिंध का नेपरा समाअत में बेबसी का इजहार, कहा बैसियत रेगुलेटर नेपरा कुछ नहीं कर सकता, हम जुर्माना करते हैं वो किसी अदालत में चैलेंज हो जाता है। इधर ताजिर बिरादरी ने भी इजाफे को मुस्तरद कर दिया, कहा रेट बढ़ाने से इंडस्ट्री बैठ जाएगी। 18,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, उसमें बिल जमा कराएगा, ये घर का खर्चा तो रहेगा। जितने
इतनी बिजली महंगी कर दी है, हम तो गवर्नमेंट मुलाजम है, हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम का ख्याल करे, जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल करें। दूसरी जानिब ओगरा ने भी गैस टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सुई नादरन के सारिफिन के लिए गैस की कीमत में औसतन 50% तक इजाफे की मंजूरी दी गई। सुई सदरन के सारिफिन के लिए गैस की कीमत में औसतन 42% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की होशरुबा कीमतों ने इनका जीना दो भर कर दिया है। ओगरा की जानिब से सुई नादरन के सारिफिन के लिए गैस नर्ख 415 रुपए 11 पैसे फी MMBTU, जबकि सुई सदरन गैस कंपनी के सारिफिन के लिए नर्ख 417 रुपए फी MMBTU मुकर्रर होंगे। हुकूमत मंजूरी के बाद कीमतों को बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। आगे बढ़े बात करें, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिलाई अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने के मामले पर सूबाई हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट मांग ली है। अदालत ने हिदायत की है कि बताया जाए कि सूबे भर में कितनी गाड़ियां महकमों और अफसरों के पास है। लाहौर से इबादुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने वकील फरत मंजूर चांडियों की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर जिलाई अफसरों के लिए नई गाड़ियां खरीदने के इकदाम को चैलेंज किया गया। अदालत ने सरकारी महकमों और अफसरों के जेर इस्तेमाल गाड़ियों के बारे में तफसीली रिपोर्ट मांग ली और हिदायत की कि 10 दिनों में ये रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने बावर करवाया कि अगर अदालत जवाब से मुतमईन ना हुई तो मुतल्लिका अफसर को तलब करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालती इत्मीनान के बाद मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। पंजाब हुकूमत के वकील की मुखालफत की और नाकाबिले समाअत करार दिया। दरख्वास्त में इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि गरीब अवाम महंगाई और भूख से खुदकशियां कर रही है और पंजाब हुकूमत ने गरीब अवाम को रिलीफ देने की बजाय अफसरों के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। दरख्वास्त में ये इतराज भी उठाया गया कि निगरान हुकूमत ने इख्तियारात न होने के बावजूद अरबों रुपए गाड़ियों की खरीदारी के लिए जारी किए, इसलिए अफसरों को गाड़ियां देने का नोटिफिकेशन कालादम करार दिया जाए। और चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत दौरान समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने गुज़श्ता समाअत के फैसले पर एतराज़ उठा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले से लग रहा था जैसे मैं जानबूझकर कमरा अदालत में चला गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और मज़ीद कहा कि ऐसा तासुर तो नहीं दिया जाना चाहिए कि मैं कह रहा था कि पीर तक समाअत मुलतवी कर दें और मैं जा रहा हूँ। समाअत रोज़ाना चल रही है, कौन से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, आला अदलिया और सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना हमारा हक। गवाह विकास मलिक पर जरा करते हुए ख्वाजा हारिस ने सवाल किया कि क्या तोशा खाना के किसी तहफ़ की जांच पड़ताल आपकी मौजूदगी में हुई? आपने मालियत की किसी से जांच पड़ताल करवाई? गवाह ने बताया कि मेरी मौजूदगी में तोशा खाना के तहफ़ की जांच पड़ताल नहीं हुई, किसी से मुआवनत हासिल नहीं। अब बात करें तूफानी बारिशों और भारतीय पानी से। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रावी, सतलुज, चनाब और जेहलुम में दरमियाने दर्जे का सैलाब आने का खदशा है। दरियाई शराब में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के दरियाओं में मुमकिन सैलाब से मुतल्लिक हाई अलर्ट जारी। दरियाए रावी में सैलाबी पानी से मोलनवाल गांव के करीब दरिया किनारे फसलों को नुकसान। दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद होने से मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के 4 मौज़ूआत मौजा नवाबपुर, मोहम्मदपुर घोटा, हेड मोहम्मद वाला और बस्ती पत्ती कालरो मुतासर। मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत महफूज मुकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी। इमदादी कैंप्स कायम कर दिए गए। दरियाए रावी में 40,600 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। दरियाए रावी में तुग़यानी के बायस नशेबी इलाकों से मकीनों और माल मवेशी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सूरत हाल सर ठीक है, तकरीबन कल से काफ़ी बेहतर हो गया है, पानी नीचे चले गया है। ठीक है, अभी इतना खतरा तो महसूस नहीं हो रहा। हमारे मवेशी देख लो सब ये दूर दूर कर दिए हैं, इसी वजह से अभी भी यही काम है। उधर से जानवर लेकर हम दूसरी साइड से ना अपने गांव में लेकर आ रहे हैं। डायरेक्टर PDM नाजिया जबीन का कहना है कि सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारे तैयार हैं। लाहौर में रावी के आसपास इलाकों को ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से, और इसके अलावा जो हमारे ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू के इदारे 1112 और दीगर मुतल्लिका इदारे उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए रावी में हेड बलोकी के करीब निचले दर्जे का सैलाब है। ताहम हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे हमावक्त सैलाबी हाल पर नजर रखे हुए हैं। अदनान भट्टी, GNN, लाहौर। गुजरांवाला में सुबह होने वाली बारिश के बाद पूरा शहर ताहाल पानी में डूबा हुआ है। अहम सरकारी दफातर समेत सड़कों पर बारिश का पानी जमा है। मजीद बता रही हैं बीनिश राजपूत। जी, गुजरांवाला में आज सुबह के वक्त होने वाली बारिश के बाद पूरा शहर अभी तक पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। हत्ता कि सरकारी दफातर से भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका।
कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, स्पोर्ट्स सिटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समेत तहसील ऑफिस और दीगर अदारों में जो है वो बारिश का पानी जमा है। हम इस वक्त कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और कैमरामैन जमशेद गिल अगर आपको दिखा सकें तो दफ्तर के बाहर जो सड़क है वो भी सारी पानी में डूबी हुई है। और हैरान कुन बात यह है कि बिल्कुल सामने जो है वो वासा का दफ्तर भी है और इस सड़क की ये सूरत हाल है कि यहाँ से सुबह की होने वाली बारिश का पानी नहीं निकाला जा। कमिश्नर ऑफिस के अंदर पानी जमा है तो शहर की दीगर शाहराहों और सड़कों की क्या सूरत हाल होगी। यानी सुबह के वक्त होने वाली बारिश का पानी शहर में अभी तक सड़कों शाहराहों पर जमा है, लेकिन वासा की सुस्त रवि के बायस मुश्किलात जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। जी आगे बढ़े और बात करें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में नाजेबा तस्वीर स्कैंडल पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आला पुलिस अफसरान की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी, जबकि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पेश न होने पर वीसी के वारंट जारी करने की हिदायत कर दी। पुलिस ने मनशियात रखने के इल्जाम में सिक्योरिटी चीफ को हिरासत में ले लिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल, मनशियात रखने के इल्जाम में सिक्योरिटी चीफ मेजर रिटायर्ड एजाज शाह गिरफ्तार, तहकीकाती कमेटी कायम। पुलिस की हिरासत में मौजूद यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का डाटा सोशल मीडिया पर लीक हो गया। सिक्योरिटी चीफ से पहले डायरेक्टर फाइनेंस प्रोफेसर अबू बकर को आइस रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जो जमानत पर रिहा हुए। दूसरी तरफ वाइस चांसलर ने तमाम केसेस को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मुनशियात की खरीदो फरोख्त और नाजेबा तस्वीर के स्कैंडल पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मामले का नोटिस ले लिया। कमेटी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर के इजलास में न आने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वारंट जारी करने की हिदायत कर दी। इजलास को चेयरमैन HEC ने बताया कि वाइस चांसलर किसी की नहीं सुनते। कमेटी ने DPO बहावलपुर को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।